Ms. Anand, I was just, going through your LinkedIn, by the way, and I'm really got impressed by one thing that you recently, got twice in Guinness Book of World Record. So I would like to know how's that experience, by the way. Um, Ms. Anand, can you hear me properly? Right. Sorry, Hello. I was typing on another laptop, another system. Yeah, yeah, So it's could okay, you it's please okay. Yeah, like no issues. tell me So I was just actually curious to know what one thing because I was looking to your LinkedIn recently and got to know that you got twice as Guinness Book of World Record. So I would like to know how was that experience, by the way? about what? I mean, like you have received twice of Guinness Book of World Records Okay, yeah, yeah, yeah. and also Limca. So I'm just curious to know about that experience, by the way. Actually, I was in college. I have multiple Okay, accounts, and it was just the Facebook came to India, and okay, we visited a lot of colleges, and then encouraged the students to comment on our post. It was on Mother's Love. okay. So On Mother's Love. on So this Mother's was Love, back in like when 2012. 2012. So it was very initial days, right? Yeah, and there was no paid advertisement at the time. It is Okay. easy for now all the time that we can create another records as well, but we have paid marketing options now. But that at that time there was no paid advertising tools. All right, Hotel. So it was very hard. Yeah, it was. Because the moment I was looking to your LinkedIn, I was obviously got impressed and feel like, okay, I need to know about how that experience really went well. So, like, how Guinness like reach you out to you in terms of you have commented this, like any kind of criteria was there that this much of comment. Actually, we have to reach first to the GWR for the guidelines. What are the guidelines? Okay. And then they explain their guidelines, and then we have to follow the guidelines for the any record. We Oh, have two records in that same category. The first one is about for most comments in 24 hours, and the second okay. one is for most comments ever. It was 36 lakh for ever, and it was 3.77 lakhs in 24 hours. Oh, insane back in those days, because Yeah, currently things are quite different. How about more than what's the scenario? Yes, yes, sorry, please continue. Please continue. Continue. you continue. So I mean, actually, I'm curious to know what's the current ratio if we talk about that time. Currently, if a person is doing any comments, a campaign running. So you Uh, mentioned like in 24 hours you get close to 33 point something lakhs, right? And three, what's the ratio now? 3 lakh 77. Yeah. 3 lakhs 70. What's the ratio now if we talk about comparison between those time and today? Actually, it is pretty hard now also. If we go Okay, to paid posts also, okay, no posts get most comments like in lakhs. okay. But it was like at that time we were in college and visited physically more than 50 colleges, and most of the students Oh, joined this campaign. And it was like uh, can, जो हाँ and no shoes, no shoes. So इसमें हाँ मतलब like how many days you took to complete that campaign? Like you visited like 50 colleges, right? आपने 50 colleges में reach out किया and mostly you have interacted with kids or students over there, right? yeah. And you obviously ask them to please like or comment onto that your post. So the duration, what was the duration overall duration of It visiting was 50 first time it colleges? was 24 hours, Okay, and then second last it was like 6 months, I think, okay, understood. for तो इतना ज्यादा overall. प्रॉब्लम नहीं हुआ मतलब हाँ मतलब Hmm. Okay, understood. And also, Mr. Anand, मैंने अभी recently ये भी देखा that you are managing several accounts as well, right? As Yeah. you have mentioned on your LinkedIn कि उसमें मतलब celebrities भी हैं, NGOs भी हैं, and politicians भी हैं. Like Yeah. मुझे ये भी जानना है कि कौन से accounts अभी आप recently handle कर रहे हैं. So मुझे भी लगा कि that handled by Anand. Actually, मैं यहाँ मैं political leaders accounts.
ओके, सो सोशल मीडिया पॉलिटिकल लीडर्स अकाउंट, अकाउंट अभी आप मेनली उन पे फोकस कर रहे हैं उसी। मेनली उन पे मेरा फोकस है। मतलब एनी कोई नेम है मतलब आपके पास कोई कि रिसेंट मतलब जो। एक्चुअली आई एम नॉट अलाउड टू ओके से द ओके, नेम्स। अंडरस्टूड। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मतलब थोड़ी अच्छा सर, एक्चुअली बिसाइड्स पॉलिटिक्स। यस। for we do not decide any party, or we do not interfere in the parties, या आई मीन there दैट्स is, ओके। but actually it is the part, privacy is maintained by me, and I actually अब pretend the सर first, इफ अगर आप हिंदी में भी ओके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी, कोई प्रॉब्लम no नहीं है। issue। हाँ, मोड ऑफ मतलब कम्युनिकेशन एक्नॉलेज। मैं मेरी तरफ से उनको ये पहले, मैं ये उनको कहता हूँ कि सर आपकी प्राइवेसी को हम लोग हमेशा ओके कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये चीजें उसमें है। ठीक है जी। ठीक है, और चलो सर, फॉर एग्जांपल अभी आप मिसालन मतलब पॉलिटिशियंस को साइड में कर दीजिए, रेस्ट हम्म। कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो आप मतलब कोई सेलिब्रिटीज हैं अभी, या फिर मतलब कोई एनजीओज भी कर रहे हैं? एक है जादूगर आंचल, शी अच्छा। इज ऑल्सो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर, ओके एंड वी हैव वर्किंग विद हर फ्रॉम लास्ट 7 years। ओके, तो आपने मतलब इनिशियल से अभी तक उनके साथ ही कर रहे हैं सारी मतलब कंटेंट क्रिएशन नहीं नहीं, में या उनका फिर मतलब। शी हैज बीन वर्किंग इन फ्रॉम लास्ट 24 years एक्चुअली। ओके। वो जब 3 से शायद 5 साल की थी तब से जादू के फील्ड में है, मतलब फर्स्ट स्टेज उन्होंने उसमें रख लिया था। बट वो शूज जो है वो स्टेज शूज काफी सालों से कर रही है, अराउंड लाइक 20 साल से ऊपर हो गए, और 11,000 से ऊपर वो शूज कर चुके हैं, स्टेज शूज। और जब मैं जयपुर में था तब उनका फर्स्ट शो था। और मैं एक्चुअली क्या होता है कि जो भी सेलिब्रिटीज हैं या अपने अपने फील्ड में जो टॉपर हैं, मैं उन लोगों को मेरे घर पर डिनर पर बुलाने में इंटरेस्टेड रहता हूँ, ओके। so that we can interact हाँ वो। without the business also, we can हम्म, create the family relations with them। तो मैं उनको, और वो थोड़ा सा उनका अलग था, जैसे आपको मेरे बारे में भी जानने में अच्छा लगा कि हाँ हाँ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का कैसा क्या रहा, तो हम्म, मेरे को भी उनके बारे में जानना था कि हाँ एक्चुअली क्या कि एक दिन पहले ही मैं उनका शो देखा। अच्छा। हाँ, किसी मीडिया में भी ठीक कनेक्शंस हैं, तो मैं मीडिया पर्सन के साथ किसी के साथ उनका शो हम्म, देखने गए थे। तो मेरी वाइफ ने कहा कि देखो कितनी कॉन्फिडेंस लड़की है, कॉन्फिडेंट लड़की है ना, इतनी पीपल, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत बड़ा एक्चुअली हम्म। उनका हॉल होता है, डोम जो होता है बहुत बड़ा होता है। बोले हजारों लोगों के सामने कितना कॉन्फिडेंस से जो है परफॉर्म कर रही है। तो मैंने कहा यार चलो अपन कल डिनर पे बुलाते हैं, मैंने अंदर ही थोड़ा मन में सोचा। मैंने कहा, तो नेक्स्ट डे मैं उनके फादर से मिला, और उनकी जो कुछ कमियां थी पहले तो उनके बारे में बताया। मैंने कहा आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होल्डर हैं, और काफी सेलिब्रिटीज द्वारा उनको एक्चुअली सम्मानित भी किया जा चुका था उस समय तक भी, बट वो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छे नहीं थे। हम्म, तो मैंने उन्हें कहा कि यू शुड बी ऑन सोशल मीडिया, आज जमाना सोशल मीडिया का ही है, अभी हर व्यक्ति हाँ। उसी पे आ रहा है, यू शुड बी देयर आल्सो। मैंने कहा जरूरी नहीं कि मैं आपकी सर्विसेज मेंटेन करूं, या आप किसी से भी करवा सकते हैं, क्योंकि दे मतलब वो सिटीज बदलते रहते हैं, तो मैं हाँ उन हाँ। चीजों में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ कि मैंने कहा मैं आपके साथ घूमूं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट मैंने कहा आप किसी किसी से भी करवाएं, बट आपको ये करवाना चाहिए, और आपको इसके लिए एक अलग से मैनेजर होना चाहिए। तो वो चीज उन्हें अच्छी लगी, उन्होंने कहा हाँ हम लोग भी सोच रहे थे काफी समय से, बट हम लोग कैसे करवाएं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिस्कशन था। तो मैंने कहा ठीक है, अपन इसको प्लान आउट करते हैं। तो और फिर मैंने कहा एट द लास्ट जब मैंने कहा, तो मैंने कहा सर आप शाम को भोजन के लिए आप आमंत्रित हैं, डिनर के लिए। तो बोले ऐसा कैसे, मैंने कहा सर एक्चुअली मैं सभी को बुलाता रहता हूँ, मैंने फेसबुक पर मेरा प्रोफाइल दिखा दिया। मेरा फेसबुक प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल उतना अच्छा मेंटेन नहीं है, बट सभी जो आते रहते हैं मैं उनके फोटोग्राफ्स वगैरह में दिखाता रहता हूँ। तो मेरा फेसबुक प्रोफाइल उन्होंने दिखाया, मैंने कहा सर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो भी एमएलएज एमपीज है या एनजीओज के जो अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर इन लोगों को भी मैं बुलाता रहता हूँ, उनकी फोटोज मैंने एक्चुअली एक वॉल बना रखी थी मेरे, ओ उनपे नाइस। फोटोज हॉल ऑफ प्रिंट, फेम। वॉल हॉल ऑफ ऑफ फेम। फेम। हाँ, तो वो मैंने कहा सर आप देख लीजिए ये सारी चीजें यहाँ हैं। तो वो चीजें उनको अच्छी लगी, एंड देन वो लोग मतलब आने के लिए राजी हुए। एंड तब तक मेन जो पर्सन है जादूगर आचार्य, उससे बात नहीं हुई, क्योंकि मैं हमारा इंटरेक्शन तो फादर एंड मदर के साथ ही चल रहा था, शी वॉज परफॉर्मिंग इन दैट शो। तो शाम को जब वो आई तो बोले मुझे ये यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कौन व्यक्ति आया है जिन्होंने एक मतलब सेम डे विजिट के लिए, घर पे विजिट के लिए एग्री हो गए मेरे पापा। बोले हम जनरली बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं, बट हम लोग उतना इजीली जाते नहीं है, मतलब थोड़ा सा रहता है ना। तो मैं बोले कि मेरे को ये जानने में इच्छा थी कि ऐसा कौन है जिन्होंने कि सेम डे विजिट के लिए रेडी कर लिया पापा को। तो मैंने कहा मैडम मेरे दिल में कुछ था नहीं ऐसा, है ना, मेरा कोई पर्सनल बिजनेस रिलेशन है ऐसा कुछ तो है ही नहीं।
तो हम लोग तो मैंने कहा ये चीज़ है, मैंने कहा थोड़ा-सा था आपके प्रति था। मैंने कहा मेरी वाइफ़ चाहती थी कि आप आएँ और मैंने कहा मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये बहुत इट्स वेरी ये चीज़ नाइस होती है। कि यू हैव सच वेलकमिंग नेचर। ऑल्दो आजकल मोस्टली कम नहीं होता, मोस्टली बहुत लोगों को होता ही नहीं है ये चीज, बिकॉज़ हाँ, बिजनेस मतलब बिजनेस मैं और मतलब थोड़ा-सा क्या है कि सारी अच्छा चीजें। अच्छा रहता है, ठीक रहता है, बढ़िया रहता हाँ, है। ओके। सो मिस्टर आनंद, और मुझे एक चीज और जाननी है जी, कि आप मतलब रीच आउट करते हैं अभी, जैसे कि आप जी। मतलब अपने आईसीपीस फॉर एग्जांपल, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जो होती हैं, आप जिनको आप तो मोस्टली सबको ही करना चाहेंगे, क्योंकि अब हर कोई सोशल मीडिया पे है। नहीं, अभी आप मैं जैसे करते हैं भी? स्कूल्स के लिए भी करता हूँ, जो अच्छा। कॉलेजेस के लिए भी करता हूँ, उनके लिए, और जो आपका जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ओके उनके लिए भी मैं मैनेज करता हूँ। उनके लिए एड्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ, या कई बार तो मैं उनको सिर्फ मैं एड अकाउंट्स सेटअप करके मैं उनको दे देता हूँ। ओके ओके। तो इसमें इस मेनली तरीके आप से। एड्स में है, कंटेंट क्रिएशंस में भी मतलब है, या फिर अभी एड्स? कंटेंट क्रिएशन मेरे पास टीम है, उसमें अच्छा। भी मैं हूँ। जिनको मैं दे रहा होता हूँ, जो मेरे स्पेसिफिक जो हैं, उनको सारी चीज़ें मैं देता हूँ, और कुछ जो है ये चाहते हैं कि हाँ, सिर्फ आप हमें ऐड क्रिएट करके दे दें, तो ओके, मैं उनको सिर्फ क्रिएट करके मैं दे देता हूँ। चलो ठीक है। तो अभी करेंटली मतलब लीड्स कैसे आती हैं? लीड्स मैं खुद एक्चुअली 2 तरीके हैं। जैसे मैं खुद सोशल मीडिया में हूँ, तो हम्म, बट मेरे जो ऑडियंस है, वो सोशल मीडिया पर नहीं है। हाँ आप हाँ, खुद इस अच्छा। चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे जो सीईओज़ या फाउंडर्स है, या जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो हम्म, उनको लीड मतलब रीच आउट करने का तरीका थोड़ा-सा हमें अलग करना होता है। हम लोग ओके। बाय फेस या उनका आप ये मान सकते हैं कि ऑन कॉल हम लोग उनसे टाइमिंग लेते, हाँ फिर वो, उनको रीच आउट करते हैं। ओके। ये तो सीन मतलब होता है। पॉलिटिशियन से भी रीच आउट्स आप मोस्टली मैसेजेस के थ्रू ही करते होंगे ना? नहीं, कॉल्स, कॉल्स के थ्रू? ओके, तो मतलब डायरेक्ट कॉल्स। डिटेल्स मिल जाती है, मतलब नंबर्स वगैरह ही? नंबर्स में बहुत अच्छा हूँ मैं सर। अच्छा आप अच्छा। नंबर जिसका आप कहेंगे मैं अवेलेबल करवा दूँगा। ओके ओके, सो यू ऑलरेडी हैव योर ओन मैजिक कि आप मतलब नंबर निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब आप देयर आर ओनली 2 पीपल्स जिनके मेरे पास नंबर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी। ओके इनके अलावा आप जिनका कहेंगे नंबर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो ये सबके तो एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली बस आपको थोड़ा-सा टाइमिंग देना होता है। इनके अच्छा। सभी के नंबर पब्लिकली अवेलेबल हैं। इनकी अपनी-अपनी वेबसाइट्स हैं, या हम्म, उनके आप ये मान सकते हैं कि इनकी जो जो गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स है, वहाँ आपके नंबर मिल जाएँगे, या इनकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, वहाँ मिल जाएँगे। या फिर उनकी जो भी टीम आपसे रीच आउट कर रही है, आप उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दिखाएँ कि हाँ, मुझे मुख्य व्यक्ति का ही नंबर चाहिए, तो वो व्यक्ति फिर अवेलेबल करवा देंगे। अच्छा। ये काफी, अब मैं मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मोस्टली हम इनसे डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। मतलब क्योंकि सब बेस्ट। मतलब गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट से वहाँ सभी के हाँ हाँ, वो नंबर्स अवेलेबल हैं, है ना? बट आपको बस जो व्यक्ति कॉल रिसीव कर रहा है, उसको आपको उतना कॉन्फिडेंटली आपको दिखाना होगा कि हाँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद यू, आई वांट टू जस्ट टॉक विद द मेन पर्सन ओनली, तो वो लोग कर लेते हैं। और फिर हम लोग उसमें भी जब मेरा मेनला शुरुआती इंटरेस्ट भी ये रहा एक्चुअली कि मैं पर्सनल बात ही करता हूँ। हम लोग वन ओ, टू वन ही कन्वर्सेशन जो हमारा रहता है, चाहे वो हम लोग जब मैं जा रहा हूँ, मैं मिलने गया उनके, जैसे उन्होंने टाइमिंग दे दिया, तो मैं उन्हें बोल देता हूँ सर हम जो बातचीत करेंगे, तब हम लोग 2 ही रहेंगे, या थर्ड पर्सन एक रह सकता है, इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑल द अबाउट सोशल मीडिया, तो आप एक व्यक्ति को और रख सकते हो, जो इस बारे में जानकारी रखता हो। तो मेनली बस मैक्सिमम 3 लोग। ओके सर। एंड ऑल्सो मिस्टर आनंद, मतलब कि इसमें आप मेल्स वगैरह भी रीच आउट करते हैं थ्रू मेल्स? थ्रू मेल्स एक्चुअली दे डू नॉट चेक, ओके। दे पर्सनली डू नॉट चेक, एंड मेरे को अभी तक मैंने किया, तो इससे बेटर हमें लगता है कि मैं हम लोग जो प्रिंटेड जो होता है हमारा, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स मेरे पास अभी तक आया हुआ है। ओके। हाँ, इसमें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें मेरे पास मेल्स के थ्रू अच्छे रिस्पॉन्सेज़ इसमें आए हुए हैं। जो भी हाँ, लाइक एजुकेशन कॉलेजेस विद वगैरह हैं, पॉलिटिशियन। उनके उनके जो हम लोग उनको मेल के थ्रू रीच आउट करते हैं, वहाँ हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके, तो एंड ऑल्सो आप अदर सोशल मीडिया एजेंसीज को भी रीच आउट करते हुए ना? सोशल मीडिया एजेंसीज़ को मैं रीच आउट क्यों करूँ? अब फॉर एग्जांपल उनको भी और थोड़ा बिजनेस देने के लिए, लाइक नहीं, कोलैबोरेशंस मैं वगैरह, एक्चुअली ऐसा कुछ मैं नहीं? नहीं कर रहा। हाँ, मतलब मैं उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाया, या कभी मेरे दिमाग में आया भी नहीं। एक्चुअली क्या ओके। होता है कि मेरे को ये लगता है कि भई व्हाई डू विल दे मतलब वो मुझे बिज़नेस क्यों देंगे? ये चक्कर है अब लाइक थोड़ा-सा इसमें कि कोलैबोरेशंस मोस्टली और सर अपना बहुत बिजनेस कम होता है, एनहांस बहुत करने बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर क्या होता है कि भई आप 10-20% के लिए आप इतनी मेहनत करो, वो म मतलब मेरे को उतना
फिजिबल नहीं लगता कि वहाँ आप उसके लिए उतना करें, ओके ओके क्योंकि सर। कई बार चीजें थोड़ी सी होती है ना, अच्छी भी हो जाती है, बिगड़ भी जाती है, वो भी होती है। तो आप मेन व्यक्ति को आप फिर भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो, आप ऑन कॉल आप कर सकते हो, बट वैसे आप थर्ड पार्टी के थ्रू आप चल रहे हो तो फिर थोड़ा सा होता है, थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस